Hello friends. In previous lecture we discussed SN1 and SN2 reaction difference regarding SN1 and SN2 reaction, stereochemistry regarding SN1 and SN2 reaction. Okay, retention, inversion, optically activity when observed, when optically activity not observed, enantiomers, and all these terms we discussed in stereochemistry of nucleophilic substitution reaction first order and second order. Now after substitution reaction we have to discuss elimination reaction. Elimination reactions are two types. First one is a alpha elimination reaction, second one is a beta elimination reaction. Okay, so here we will discuss beta elimination reaction. So which reactions are called beta elimination reaction? See here, beta elimination reaction. Beta elimination reaction. So when haloalkane having beta hydrogen, when haloalkane having beta hydrogen react with alcoholic KOH, then hydrogen is removed from beta carbon and halogen is removed from alpha carbon. And alkene is obtained. Alkene is obtained. So the reaction of haloalkane, which condition is there? That haloalkane must contain beta hydrogen, means beta carbon on that carbon hydrogen must be present. And when it reacts with alcoholic KOH, then what happens? Hydrogen is removed from beta carbon. So from where hydrogen is removed, based on that the name of reaction is given. Okay. Here hydrogen is removed. My friends, there are two possibilities. Either hydrogen should remove from alpha carbon or from beta carbon. Okay, so in this reaction, hydrogen removed from beta carbon. So it is called beta elimination reaction. Hydrogen is removed from beta carbon. So this reaction is called beta elimination reaction. Beta elimination reaction. See, in haloalkane, all carbons are sp3 hybridized, but final product is alkene obtained. So sp3 hybridized carbon is converted to sp2 hybridization. And another thing, here hydrogen is removed and halogen also removed from alpha carbon. From alpha carbon, halogen removed. So this reaction, when we remove, then we are using dehalogenation, dehydrogenation, okay, dehydration, decarboxylation. Like that, this reaction is also called dehydro. एक हाइड्रोजन हम निकाल रहे हैं और एक हेलोजन निकाल रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड dehydro halogenation reaction. Dehydro halogenation reaction. बात समझ में आ रही है? या तो आप इसको बीटा एलिमिनेशन बोल सकते हो या तो इस आपको dehydro
हेलोजिनेशन भी बोल सकते हो। ये किस टाइप का कन्वर्जन है? हियर कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp3 कन्वर्टेड टू अल्किन बन रहा है ना, अनसेचुरेटेड, कन्वर्टेड टू कार्बन हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, ये कन्वर्जन ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। चलिए मैं एक सिस्टम ले लेता हूं, ये कार्बन, उसके पास हेलोजन है, इसको हम बोलेंगे अल्फा कार्बन, ये दोनों वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ये दूसरा, तो इसको बोलेंगे हम, जिसके पास हेलोजन है उसको नाम देंगे अल्फा कार्बन। यहां पे एक हाइड्रोजन है, ये दो वैलेंसी भी हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड है। ठीक है, कोई एक न्यूक्लियोफाइल बी है, OH माइनस, नेगेटिवली चार्ज आर लेविस बेस मींस न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर ऑफ द न्यूक्लियोफाइल और नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन दिस हाइड्रोजन। जैसे ही वो इस पे अटैक करेगा तो दिस बॉन्ड विल बी मूव हियर एंड दिस कार्बन हेलोजन बॉन्ड विल बी ब्रेक डाउन। तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी, ये बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, सिग्मा बॉन्ड कन्वर्टेड टू कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड कन्वर्टेड टू पाई बॉन्ड। ओके, ये भी बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन, ये भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। ये तीनों में से यहां आने की पॉसिबिलिटी तीनों की सेम है। ठीक है, लेकिन अभी हम ये एक ही हाइड्रोजन से मैकेनिज्म समझते हैं। ये अल्फा हाइड्रोजन है तो ये बीटा कार्बन है, ये बीटा कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन है, इसलिए ये बीटा हाइड्रोजन है। तो आप फिर से डेफिनेशन पढ़िए, व्हेन हेलो अल्केन हैविंग बीटा हाइड्रोजन, और ये अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट, तो ये जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिला है वो अल्कोहलिक KOH के OH माइनस से ही, सपोज कर लो, तो ये हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा, आइदर दिस और दिस और दिस, तीनों की पॉसिबिलिटी सेम है। ये सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे पाई बॉन्ड बन जाएगा, ये कार्बन हेलोजन जो पोलर बॉन्ड है वो टूट जाएगा। तो हमें फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगी कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, तो ये जो हेलोजन कंटेनिंग कार्बन है वो sp3 है, यहां पे वही कार्बन हो जाता है sp2, दोनों बीटा हाइड्रोजन वाला भी कार्बन हो जाता है sp2, यहां पे वो कार्बन है sp3। ठीक है, और हमें बाय प्रोडक्ट ये न्यूक्लियोफाइल विथ हाइड्रोजन, द प्रोडक्ट विल बी BH। ठीक है, देख लीजिए पूरा आ रहा है समझ में? चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए हम एक सबस्ट्रेट लेके बीटा एलिमिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं सबस्ट्रेट ले लेता हूं, CH3 CH2 Cl, यह है क्लोरोइथेन। पहले पूरा इसको समझ लेना, ये वाला कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन है, तीनों के पास इक्वल पॉसिबिलिटी है न्यूक्लियोफाइल के अटैक की। अब इसका रिएक्शन हम करेंगे अल्कोहलिक KOH के साथ। आप पूरा ध्यान देना, अल्कोहलिक KOH नहीं है तो ये रिएक्शन नहीं होगा। दिस रिएक्शन इज ओनली पॉसिबल विथ अल्कोहलिक KOH। इफ यू टेक हियर एक्वियस KOH तो रिएक्शन दूसरा हो जाएगा। So compulsory, if you are not written alcoholic KOH, then 0 mark. It is beta elimination reaction not possible. अब क्या होता है, ये क्लोरीन यहां से अल्फा में से निकलेगा और ये K प्लस OH माइनस, सो माइनस KCl। ये OH माइनस, अब ये न्यूक्लियोफाइल है, ये किसी भी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करेगा तो यहां से H प्लस, ये OH माइनस, ये निकल गया माइनस H2। अब ये आइदर दिस और दिस और दिस, तीनों सिग्मा बॉन्ड जो है उसमें से कोई एक सिग्मा बॉन्ड पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमें प्रोडक्ट मिलेगी CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथिन।
इसको बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब और एक बार मैं आपको समझाना चाहता हूं कि इसको बीटा एलिमिनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां भी हेलोजन यहां से निकल रहा है तो हाइड्रोजन अल्फा में से नहीं निकलता है, हाइड्रोजन कंपल्सरी बीटा कार्बन से ही निकलता है, इसलिए उसको बीटा एलिमिनेशन कहा। बीटा इसलिए लिखा है कि compulsory hydrogen we have to remove from beta carbon, not from alpha carbon, even if two hydrogen present on alpha carbon. ओके, इसलिए इसको बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। अब एक प्रॉब्लम ये आया कि if there are two beta कार्बन्स आर प्रेजेंट, इसका मतलब ये हुआ कि दो बीटा कार्बन है तो दो बीटा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, मतलब कि टू बीटा हाइड्रोजन। इफ देयर आर टू बीटा कार्बन्स आर प्रेजेंट देन प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड according to Russian scientist Alexander Zaitsev, और इसको Zaitsev भी बोला जाता है, rule. Let us discuss by taking one example. If there are a possibility of two beta carbons having hydrogen also, so or you can say if the haloalkane having two beta hydrogens, then the product is obtained according to most important Zaitsev rule or Zaitsev rule. That is also asked in 2 marks. So let us discuss the Zaitsev or Zaitsev rule. See here, the carbon containing halogen is alpha carbon, and here are two possibilities of beta carbon. This one right side is one beta carbon, here left side is also one beta carbon. When this react with alcoholic KOH, when this one is react with alcoholic KOH, so there are possibility of two products, either hydrogen removed from this beta carbon or hydrogen removed from this beta carbon. It is compulsory halogen removed from here. Okay, so the first product, if I removed hydrogen from here and halogen from here, minus KCl and minus H2O, then the product will be CH3 और एक बात ध्यान में रखना शॉर्टकट में कि जहां से भी हेलोजन निकालो और जहां से भी हाइड्रोजन निकालो, ये बीटा एलिमिनेशन में उस दो कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड लगा देना है सीधा। अगर कोई समझ में नहीं आता, जहां से हेलोजन निकलता है, जहां से हाइड्रोजन, बीटा हाइड्रोजन, उस दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। सो देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, IUPAC नेम पेंट 1 इन। अब दूसरी प्रोडक्ट देखिए, यहां पे अगर मैं हेलोजन यहां से और हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन से निकालता हूं तो ये दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो मुझे प्रोडक्ट मिलेगी ऐसे CH3 CH2 CH, हाइड्रोजन वहां से निकल गया, डबल बॉन्ड CH और CH3। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हुई पेंट 2 इन। ठीक है, अब प्रैक्टिकली मेजर किया तो देन दिस प्रोडक्ट इज ऑब्टेन ओनली 19%, सो दिस वन इज द माइनर प्रोडक्ट। इस प्रोडक्ट को एनालिटिकली मेजर किया तो ये प्रोडक्ट मिलती है 81%, मतलब कि ये मेजर प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में मिलती। ठीक है, one product is 19% minor product, another one is the 81% that is major product। अब देखिए ये ऑब्जर्व करके
ये सेजेफ ने क्या बताया कि when this type of possibilities are observed at that time, when this type of possibilities are observed at that time, the alkene obtained having maximum number of alkyl groups, maximum number of alkyl group. आप इसके ये दोनों अल्कीन कार्बन को अंडरलाइन कर लो। इसके बाद इसको देखो यहां पे एक्सेप्ट दिस अल्कीन कार्बन एक अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहां पे दोनों अल्कीन कार्बन को अंडरलाइन कर लो, कर लिया। यहां पे ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप है, ठीक है। यहां पे इथिलीनिक कार्बन के पास एक अल्काइल ग्रुप, यहां इथिलीनिक कार्बन के पास दो अल्काइल ग्रुप। जो ज्यादा अल्काइल ग्रुप अगर 3 है तो वह स्टेबल होगा, तो यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है, तो ये प्रोडक्ट जो है वो मेजर होगी, ये प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगी। तो ये ऑब्जर्व करके हमें रूल लिखना है। द मेजर प्रोडक्ट of alkene having maximum number of alkyl groups, ये उसका रूल है। In this condition, the major product is alkene having maximum नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। यहां पे एक अल्काइल ग्रुप है तो ये माइनर प्रोडक्ट है, यहां पे दो अल्काइल ग्रुप है तो ये मेजर प्रोडक्ट है। अब एक नया जो रिएक्शन ऐड हुआ SN1 SN2 के अंदर, एलिमिनेशन। अब क्या होगा कि जब भी कोई रिएक्शन करेंगे तो ये तीनों जो है उसमें कंपटीशन होगी, SN1 होगा या तो SN2 होगा या तो एलिमिनेशन होगा, क्योंकि सबके अंदर जो अटैक है, द अटैक इज ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन आवर सबस्ट्रेट। देन यू हैव टू थिंक आइदर SN1 इज पॉसिबल, SN2 is possible, or elimination is possible. Which conditions are favorable to SN1? Which favorable for SN2? Which favorable for this? Here one thing is clear, alcoholic KOH. So clearly you can say here elimination, but if you consider steric hindrance, stability of carb cation, resonance effect, mesomeric effect, then it is very difficult to decide. तो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे ये तीनों के बीच में जब कंपटीशन होगी तो आप कौन सा रिएक्शन, एलिमिनेशन प्रीफर करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेंगे, ठीक है, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रीफर करेंगे तो उसमें SN1 या तो SN2। अब आपके लिए थोड़ा ये कठिन रास्ता हो जाता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, एक बात मुझे आपके जनरल नॉलेज के लिए बतानी थी। यहाँ पे जो आपको मेजर प्रोडक्ट मिल रही है उसको आप जेडसेव या तो सेजेफ प्रोडक्ट बोल सकते हो, और ये जो प्रोडक्ट मिल रही है इस प्रोडक्ट को आप हॉफमान प्रोडक्ट बोल सकते हो। तो कभी ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉफमान प्रोडक्ट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेजेफ प्रोडक्ट, तो आप इजीली बता सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।